Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TYBCom Economics. Friends, in last two sessions, we have already discussed some of the points of our first module, Chapter 1, New Economic Policy 1991. Till now, we have discussed from 1951 till 1990, Indian economy was suffering from downfall, heavy crisis. There were three basic reasons. Our internal debt increased up to 48.6% of GDP. मतलब इंडिया में जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा था नियर टू 50% गवर्नमेंट लोगों से कर्ज लेकर वो प्रोडक्शन कर रही थी. इन्फ्लेशन रेट रीच अप टू 10.2% एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो अमाउंट तिजोरी में होना चाहिए इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए, इट वॉज डिक्लाइन फ्रॉम 3.1 बिलियन टू 896 million US dollars. In our last lecture, we have discussed important policy changes. The first part we have covered, that was macroeconomic stabilization. That is nothing but demand side management. We have discussed कि Indian economy was suffering from three basic crisis problems. So what we did to create demand in the market? First of all, we have controlled inflation rate. And how we did that? Central Bank, RBI, has increased bank rate, CRR, SLR, and followed tight monetary policy, which reduced the purchasing power of the people. And because of that reason, people were not demanding costly products. On the opposite side, government has followed easy fiscal policy. They have reduced import duties on so many non-agricultural products. On the other side, imports were allowed for so many products. And because of this combination, inflation rate reduced up to 4.6%. After 1991, friends, to correct fiscal position, government has reduced public expenditure, non-productive public expenditure, by cutting down some of the expenses on subsidies, defense expenditure, and all that. On the other side, we have introduced corporate tax, and we have reduced that tax up to 35%. So businessmen were ready to pay some of the tax. So government was able to collect some of the tax revenue. On the other side, government has reduced non-productive public expenditure. And thirdly, to overcome the situation of balance of payment crisis, the rupee was devalued to encourage exporters to export more. So finally, we were able to collect some more foreign reserves. All these three steps we have discussed in our last session, which was showing the effect on demand side to create demand in the market of Indian economy. That was capital A. Today we are going to discuss capital B, that is structural reforms. Reforms का मतलब होता है सुधार. Now what is structural reforms? Structure means ढांचा. हड्डियों का ढांचा मेरे जैसा? No. From the base till the height, full economic system was restructured to create supply. There is supply side management. Remember one thing, friends. Economy is running on two different wheels of demand and supply, and both should have some balancing system. तो एक बाजू हमने कैपिटल ए में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन की हेल्प लेकर डिमांड को क्रिएट किया,
जब मार्केट में लोग डिमांड करेंगे तो सामने बिजनेसमैन जो है, प्रोड्यूसर्स जो है, वो उस चीज को सप्लाई भी कर पाए एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, एट नेशनल लेवल. फॉर दैट पर्पस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हिसाब से वी हैव अंडरटेकन 4 मेजर स्टेप्स. दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, public sector reforms, that is disinvestment, trade and capital flow reforms, and financial sector reforms. We will discuss all these factors in detail. So let's begin today with our first point of industrial sector reforms. Rising industrial sickness and stagnating industrial growth due to excessive government control over industries. Friends, we have already discussed before 2 sessions. 1951 से इंडियन इकोनॉमी की जो सोच थी वो ये थी कि ऑल द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज वुड बी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक सेक्टर, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बिजनेस हम प्राइवेट सेक्टर को सौंपेंगे. पर इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था ओवर इंडस्ट्रीज वर सो हाई, एक्सेसिव कंट्रोल वाज देयर. And because of that reason, industrial growth ना के बराबर हुआ. Friends, the momentum which we could see after the announcement of new industrial policy 1991, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस किया इन द ईयर ऑफ 1991, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ सुधार किए. इट ऑल्सो इंक्लूड 4 different major steps taken by Indian government. First one was abolition of industrial licensing. First of all, let me clarify some of the basic concept of industrial licensing. Till 1991, Indian economy was very strict on the point of licensing to start any industry. किसी भी बिजनेस को शुरू करना हो तो वी नीड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग वाज सो लेंदी दैट बिजनेसमैन वर नॉट रेडी टू स्टार्ट एनी बिजनेस. बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर वाज नो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड इन 1991, with the help of new industrial policy, with the help of new economic policy, the very first step which we have taken is abolition of industrial licensing. The new policy abolished industrial licensing for all industries except 5 industries. हमने बाकी सभी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया कि आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराइए. फिर दोनों में बड़ा फर्क होता है. When we use the concept इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब आपको हर काम गवर्नमेंट की परमिशन से करना पड़े. यू हैव टू टेक एनी डिसीजन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट परमिशन. बट व्हेन यू आर सेइंग कि आपको सिर्फ अपने फर्म को रजिस्टर कराना है, तो इट मीन्स कि टू टेक फ्री बिजनेस डिसीजन, यू आर फ्री टू टेक एनी बिजनेस डिसीजन. हाँ, यू हैव टू रजिस्टर योर फर्म, योर कंपनी विद द गवर्नमेंट. तो हमने 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग कंपलसरी किया. बाकी सब में से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी ना करके उसको एबॉलिश कर दिया. एंड व्हाट वर दैट 5 इंडस्ट्रीज? तो दे आर अल्कोहल, सिगारेट्स, हैजार्डस केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स. अगर आपको सिगरेट बनानी है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई हैवी केमिकल मैन्युफैक्चर करना हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जो डिफेंस में यूज होते हैं, एरोप्लेन में यूज होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डायनेमाइट का यूज करना हो, डायनेमाइट मैन्युफैक्चरिंग करना हो, रास्ते, टनल, सुरंग की खुदाई के लिए, तो वो जो इंडस्ट्रीज है उसमें लाइसेंस वर कंपल्सरी. उसके अलावा एक्सेप्ट दैट ऑल अदर इंडस्ट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग. तो अब बिजनेसमैन के
सिर से काफी सारे हेडेक कम हो गए प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी। तो दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। फ्रेंड्स, आवर सेकंड रिफॉर्म was permitted foreign investment. Initially, FDI, that is foreign direct investment, was allowed up to 51%. Subsequently, this limit was raised to 100% for many industries. Hotel industries, banking system, insurance sector, in so many other fields. बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया में अपना 100% कैपिटल लेकर आए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, अपने मैनेजमेंट को लाए और कंपनी यहां पे शुरू करे। देखिए फ्रेंड्स, ये बात समझना बहुत इजी है अपने लिए। डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड्स, ये कोई भी कंपनी इंडिया की नहीं है। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा नाम इंट्रोड्यूस करूं, बाटा। इंडिया के छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको बाटा पता होगा। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि बाटा इंडिया की कंपनी है। जब टाटा इंडिया की कंपनी है तो बाटा क्यों नहीं हो सकती? टाटा बाटा राइमिंग होता है। फ्रेंड्स, बाटा कनाडा की कंपनी है। बाटा को इंडिया में हमने अलाउ किया विथ इट्स फुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो अपना कैपिटल, अपना टेक्नोलॉजी, अपना मैनेजमेंट सब कुछ लाके यहां पे इंडिया में प्रोड्यूस करे। हमने उस चीज को अलाउ कर दिया। तो ये जो चीजें हैं जहां से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहाने फॉरेन रिजर्व्स जो है, फॉरेन करेंसी, वो इंडिया में आने लगी। तो अपना जो कॉन्सेप्ट था कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफी नीचे जा रहे थे, मैंने एक बात कही थी कि ड्यूरिंग दैट टाइम 1991 में 15 दिन तक अगर हम कुछ इंपोर्ट करेंगे तो उसका पेमेंट करने का पैसा हमारे पास था। उसके बाद का पेमेंट करने का पैसा नहीं था, डॉलर्स नहीं थे, फॉरेन करेंसी नहीं थी। फ्रेंड्स, व्हेन वी अलाउड एफडीआई अप टू 100% इन मैनी इंडस्ट्रीज, तो उस बहाने फॉरेन करेंसी इंडिया में आने लगी। इट वॉज कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। तो दैट वॉज आवर सेकंड रिफॉर्म फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्पज। थर्ड वन इज that is reduced the role of public sector. The new policy reduced the number of industries reserved for public sector from 17 to 3. What does it mean? मैं बार बार ये बात बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर रशियन इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत हेवी इफेक्ट था। तो we were following the concept of socialism actually। और बाद में जब इकोनॉमिक प्लानिंग पे बात गई फ्रॉम द ईयर ऑफ 1951, तो इंडियन इकोनॉमी फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे ये कहा गया कि सभी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी। देयर इज गवर्नमेंट कंपनीज, देयर वाज पब्लिक सेक्टर। पर प्रॉब्लम ये था फ्रेंड्स, टिल 1991 जो चीजें देखी गई वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर फेसिंग heavy loss and because of that reason बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखी गई थी, गवर्नमेंट के पास उसका रिजर्वेशन था, बस ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस गवर्नमेंट ही संभाले, उसके नंबर को हमने कम कर दिया और वो 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, अब उसको कम करके हम 3 पे लेकर आए। 3 इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आज भी प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट एंटर। दैट इज एटॉमिक एनर्जी, अगर हमने कभी नाम सुना हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तुर्बे, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, वो जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उसके सेंटर को तोड़ के कभी साइंस पढ़ा हो तो उसमें से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उसके काफी पावरफुल एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प होती है, जिसमें से एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब तक की बात जाती है। तो फ्रेंड्स, वे एटॉमिक एनर्जी जो है इस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड। सेकेंड वन इज सब्सटेंस इज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दैट इज बॉयलर्स, जो बड़े बड़े हेवी मशीनरी होते हैं विच आर यूज्ड फॉर एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, उसमें भी कोई प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड।
एंड थर्ड वन इज रेलवे। फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे, डोंट आर्ग्यू विथ मी कि सर मेट्रो भी तो है और वो तो प्राइवेट कंपनी है। फ्रेंड्स, मेट्रो जो है वो रेलवे नहीं है, हम उसका एक सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं, दैट इज ओके, बट इट्स नॉट रेलवे एक्चुअली। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं कर रही है। कुछ सालों पहले ये बातें चल रही थी कि टाटा वाले ने मुंबई लोकल ट्रेन का डिमांड किया था प्राइवेट सेक्टर कन्वर्ट करने के लिए, बट इट वॉज नॉट अलाउड। तो फ्रेंड्स, ये तीन ऐसी इंडस्ट्री है, एक एटॉमिक एनर्जी, सेकंड वन इज सब्सटेंसेस नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये तीन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा। उसके अलावा बाकी की 14 इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई। Thus, core industries like iron and steel, electricity, air transport, etc. are permitted to private sector. I can share so many interesting example here. Friends, बहुत सालों पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक सिंगल कंपनी थी आयरन एंड स्टील की, दैट इज इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। उसके सामने कंपटीशन में एक प्राइवेट कंपनी को एंट्री दी गई, टिस्को, जिसको आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। इट इज प्राइवेट कंपनी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री की बात करूं, अगर आपके घर पे 20-25 साल पुराना लाइट बिल अगर निकले, जस्ट चेक इट आउट फ्रेंड्स, उसके ऊपर लिखा होता BSES लिमिटेड, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट था, ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी जो पूरे मुंबई को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी, जिसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पूरे मुंबई में। फ्रेंड्स, इन द ईयर ऑफ 2003 दिस BSES लिमिटेड was taken over by रिलायंस एनर्जी, अनिल अंबानी की जो कंपनी रिलायंस एनर्जी, उसने इसको टेक ओवर कर लिया। एंड इन द ईयर ऑफ 2017 अदानी ने रिलायंस को भी टेक ओवर करके परचेज कर लिया। तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, जब रिलायंस ने BSES लिमिटेड को टेक ओवर किया तो द अमाउंट वॉज अप्रोक्सीमेट 743 करोड़। और बाद में जब अदानी ने रिलायंस के पास से टेक ओवर किया मुंबई में बिजली सप्लाई करने के लिए, तो द अमाउंट वॉज 13,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट। पर ये सब प्राइवेट कंपनी हो गई, रिलायंस, अदानी। तो BSES वॉज गवर्नमेंट कंपनी। तो अब हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए भी प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया। उस बहाने गवर्नमेंट के पास पैसे आने लगे, कैपिटल इनफ्लो होने लगा। 13,000 करोड़, 743 करोड़, ये जो आने लगा अमाउंट। उसके बाद अगर बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट। बचपन में हमने सुना होगा दो बड़ी कंपनी है, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। फ्रेंड्स, एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए थी, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए थी, और ये दोनों गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी थी। लेकिन आज इफ यू हर्ड जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, अब तो बहुत सारी कंपनी, किंगफिशर, तो देयर वर सो मेनी प्राइवेट कंपनीज पर अलाउड इन एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। उस बहाने बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास जमा होने लगा। तो यहां से जो पैसों की मारामारी क्राइसिस इकोनॉमी में जो दिख रही थी, उसमें से हम ओवरकम आने लगे, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ने लगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो कामकाज बढ़ेगा, तो टर्नओवर बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इनकम बढ़ेगी। तो ये सप्लाई साइड को हम कवर करते जा रहे थे। दैट वाज आवर थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज नथिंग बट reduced role of public sector. Our fourth one is removal of MRTP limit. First of all, let me clarify what is MRTP. The full form is Monopoly and Restrictive Trade Practices. फिर ये एक एक्ट था, ये एक कायदा था। पहले इस कायदे को हम समझ लें। कायदे का एक कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी
कहीं पर कोई बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट ना कर दे। इसलिए गवर्नमेंट ने टिल 1991 एक रूल रखा था कि अगर आपकी कंपनी में बैलेंस शीट में नेट टेंजिबल असेट्स जो होता है वर्थ, अगर वो 100 करोड़ के ऊपर चला जाता है, आपका टर्नओवर जो है अगर वो 100 करोड़ के ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद दैट कंपनी कैन नॉट टेक एनी बिजनेस डिसीजन फ्रीली विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर आज मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं कोई अच्छे बिजनेस में हूं, एक अच्छी इंडस्ट्री चला रहा हूं, और अगर मेरा टर्नओवर, मेरा नेट असेट्स वर्थ का वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर दिखता है बैलेंस शीट में, तो उसके बाद अगर मुझे मेरी कंपनी में कोई ब्रांच शुरू करनी है, कोई नया बिजनेस टेक ओवर करना है, फ्रेंचाइज शुरू करनी है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, ऐसा कुछ भी करना हो, तो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, एज अ प्राइवेट सेक्टर ओनर, एज अ बिजनेसमैन, मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि जब मैं इतनी मेहनत करके मेरे बिजनेस को इस लेवल तक लेकर जाऊं और फिर मुझे हर काम के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, तो फिर जाने दे, मुझे अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड करना ही नहीं है। तो फिर मैं अपने नेट असेट्स वर्थ की वैल्यू को 100 करोड़ से नीचे ही रखूंगा। बिजनेस को अगर पॉसिबल भी होगा तो भी एक्सपांशन नहीं करूंगा, ग्रोथ नहीं करूंगा। तो 1991 तक दैट वाज द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ये बात समझ में आ गई कि काफी ऐसे अच्छे बिजनेस हाउसेस है जो प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एक्सपांशन के साथ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, सप्लाई साइड को बढ़ावा दे सकते हैं, पर दे आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट कि हमें हर चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो तो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। तो 1991 की इस पॉलिसी के तहत फ्रेंड्स MRTP एक्ट वाज एबोलिश्ड, इसे खत्म कर दिया गया और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि एज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट, एज एन ओनर, आप अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन फ्रीली ले सकते हो। अगर आपको किसी और फर्म को टेक ओवर करना हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करना, अमालगमेशन करना, अपने बिजनेस का एक्सपांशन सोचना, डाइवर्सिफिकेशन सोचना, कहीं पर भी वी डोंट नीड एनी परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन आवर ओन इंडस्ट्री। तो ये एक और अच्छा कदम उठाया गया। तो देट वर 4 मेजर स्टेप्स अनाउंस्ड इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग कर दिया कि सभी बिजनेस को लाइसेंस का जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 बिजनेस को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कुछ इंडस्ट्रीज में 100% अलाउ कर दिया कि बाहर से पैसा लेकर आओ। पहले हम बोलते थे हम कोई भिखारी है, बाहर से पैसे क्यों मंगाए, अब हमने इसको अलाउ कर दिया 100%। तीसरे पॉइंट पे पब्लिक सेक्टर के लिए हमने जो रिजर्वेशन रखा था वो 17 इंडस्ट्री से कम करके 3 इंडस्ट्री पे लाकर रख दिया, बाकी सभी में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री अलाउ कर दी गई। और फाइनली MRTP एक्ट को एबोलिश कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर जो है वो अपने बिजनेस के डिसीजन ले पाएगा, उसे गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और ऑडिट रिपोर्ट देते रहना है। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल sector reforms. Friends, after that we have second point is, and that is public sector reforms and disinvestment. देखिए हमें एक डाउट हो जाएगा कि क्या सभी गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी फालतू होती है? नहीं फ्रेंड्स, काफी अच्छा बिजनेस पब्लिक सेक्टर के पास है। प्रॉब्लम ये था कि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनी जो थी दे वर सफरिंग माउंटिंग ऑफ लॉसेस। ऑलरेडी वंस आई हैव डिस्कस विथ यू, एयर इंडिया का आज की तारीख में जो लायबिलिटी है, द अमाउंट इज नियर टू 53,000 करोड़। मतलब हम लायबिलिटी के ढेर पे बैठे हैं। रीजन ये है फॉल ऑफ एफिशिएंसी। बीच में भी एक बार ये कहा था
पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो होता है वहां पे एफिशिएंसी नाम की कोई चीज नहीं दिखती, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है। तो उनका जो मोटिव वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो सर्विस मोटिव है। तो उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी फिर उसी हिसाब से चलता है। गवर्नमेंट का कंपना, गवर्नमेंट की कंपनी तो धक्का मार के चलाओ। मैंने बीच में एक बार मजाक किया था कि अगर 10 बजे का टाइम होगा ना तो 10:30 के पहले कोई टेबल पे नहीं आएगा बाबू। 11 बजे से पहले तो फाइल ओपन नहीं होगी। तब तक कटिंग चाय पी लेगा, इडली का नाश्ता करेगा और ये डिस्कस करेगा कि कौन सी मैडम नहीं आई है और कौन सी मैडम नहीं आई है। और 1.5 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच के बाद 2 घंटे बाद आके 1.5 घंटे और काम करेगा और फिर ये डिस्कस करेगा कि जो मैडम नहीं आई है उसकी खबर पूछने कौन जाएगा और जो मैडम नहीं आई है उसका घर देखने कौन कौन जाएगा। तो काम तो ये दिन में 3 आवर्स भी नहीं करेंगे। तो इट वॉज लैक ऑफ एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जहां पे डायरेक्टली कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, तो वो मोटिवेशन नहीं था कि चलो हम काम करें तरक्की के लिए। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उसमें बजट में गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर कंपनी को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए फाइनेंशियली, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन गवर्नमेंट की कंपनी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस दिखने लगी, लैक ऑफ कैपिटल इन देयर हैंड। जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे अगर नहीं है तो ऑर्डर मिल भी गया कोई कंपनी को, गवर्नमेंट की कंपनी को अच्छा ऑर्डर, तो भी वो फुलफिल नहीं हो पाता था। तो उसमें डिसीजन लेने में डिले होने लगे, उनके पास वर्कर्स को देने का पेमेंट वो सब नहीं होता था। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक नई चीज को लाने की बात हुई, देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने जब कोई कंपनी शुरू की हो तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल इनफ्लो करके, कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, दैट इज इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में बेच दे, प्राइवेट कंपनी को बेच दे और अपना इन्वेस्टमेंट वापस एब्जॉर्ब कर ले, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ले, पैसा वापस आ जाए उनके पास, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल कि BSES लिमिटेड जो थी वो गवर्नमेंट की कंपनी जो पूरे मुंबई में बिजली सप्लाई करती थी, इलेक्ट्रिसिटी। जब रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया तो रिलायंस के जेब से BSES मतलब गवर्नमेंट के पास, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास 743 करोड़ तिजोरी में आ गए एक साथ। तो दैट इज द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट। एक और चीज की गई, गवर्नमेंट कंपनी जो अच्छा काम करती है, जिनके बहुत अच्छे बिजनेस थे, तो उनको प्राइवेट कंपनी को सौंपने के बजाय वो लोगों को अलाउ किया गया टू क्रिएट फ्रेश कैपिटल फ्रॉम इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट डायरेक्टली। So now public sector company can also create capital by issuing shares. Friends, हमने अगर कभी नाम सुना हो ध्यान से, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भेल BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये वो सब गवर्नमेंट की कंपनी जो बहुत अच्छा बिजनेस चला रही है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये वो सब पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो बिजनेस काफी अच्छे से रन अप कर रही थी, बट दे वर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इन द पॉलिसी ऑफ 1991 गवर्नमेंट ने इनको इक्विटी मार्केट में एंट्री अलाउ कर दी। तो टुडे द सीन इज कि हमने जितने भी अब तक नाम दिए फ्रेंड्स, उसमें एक कंपनी है सेल, SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। आज की तारीख में इंडिया में जितना भी स्टील आप और मैं यूज करें उसका अप्रोक्सीमेट 30 to 40% स्टील अकेले इस एक कंपनी के पास है। तो इन सभी कंपनीज को मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए इक्विटी मार्केट अलाउ कर दिया गया। दे कैन इश्यू देयर शेयर्स। हाँ, 51% शेयर कैपिटल आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, बाकी का 49% शेयर कैपिटल जो है वो मार्केट से आ रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने ये सभी अच्छी इंडस्ट्रीज में क्या किया, 49% अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। व्हाट डज इट मीन कि जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अब वो मार्केट से, पब्लिक से रेज कर दिया और वापस रीगेन कर दिया। तो उस बहाने गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसे जमा होने लगे
तो वो मनी क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट था उसको अब धीरे धीरे हम ओवरकम करने लगे. तो दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट. तो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू इंपॉर्टेंट मेजर्स. सप्लाई साइड मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तहत जो पहला काम हमने किया वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस को एबोलिश कर दिया गया, एमआरटीपी एक्ट को एबोलिश कर दिया गया, एफडीआई को 100% कुछ बिजनेस में अलाउ कर दिया गया और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को 17 से 3 पे लाके रख दिया. और उसमें भी बाकी सब कंपनीज में डिस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट 51% शेयर अपने पास और 49% शेयर कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया. तो दैट वर two important measures. Remaining two measures we will discuss in our next session. Friends, please take care of yourself. Share, like and subscribe this video. Soon I'll upload you again. Thank you.